तू कर ले सलाम इंट्रोडक्शन तू कर दे मैं तो चाह बनाउन दे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का दिन है, आज इतवार है, इतवार का दिन है। जैद लगी है चाय बनाने, अपना कैमरा ऑन करके ताकि प्रूफ रहे कि मैंने चाय बनाई। पत्ती तो मैं पाई नहीं इधर और उसामा भी आ गया। उसामा भी आ गया तो उसामा की चाय साथ ऐड कर दूं आपकी भी। I have to take Sana to the doctor. अच्छा फिर बाद में आके देखेंगे। फिर अपॉइंटमेंट है वैसे ही रेगुलर अपॉइंटमेंट। या वैक्सीन का। अच्छा तो चाय अभी ना बनाऊं फिर मैं? नहीं आप नहीं बनाया, अपनी बना ले। तो ये मेरे लोगों से सलाम दुआ किए बगैर कैसे निकल गए इधर सलाम हुआ? आपको आई एम सॉरी, स्पेशल गेस्ट पे करना पड़ेगा आपको मुझे। सिर्फ वॉइस के लिए पे किया है इतना। ये हिंदी में ये देखिए क्या फिर कहते हैं मेरी टोपी पीछे कैसे कर दी, ये वो ये अभी पहना आज कहते हैं बजाय नहीं दिया। अब वो जो लाए थे आज पहना। बस इसमें यह कि जब घर में ज्यादा देर पहन के बैठो तो फिर वो जाहिर है मुझे तुम बहुत लंबे हो गए। माँ ये कैसे रखा है आपने? मैंने नहीं रखा। ये इतना लंबा है देखना। Yeah, it looks so huge. हाँ देखना माशाल्लाह। चले मैं तो यार आप छोटे हो गए। हाँ वो भी लगा कि यार क्योंकि मैं देखिए मेरा छोटा भाई छोटा भाई है लेकिन छोटा पेटू भाई नहीं कहना। पेट नहीं, अब कम हो गया, मेरा अभी भी ग्रो हो रहा है। नहीं, पापा ने खुले कपड़े पहने हुए हैं? अच्छा खुले कपड़े पहने। तो आज वो तुम कभी मेरी तारीफ ना किसी को करन दी बहुत ही जेलस है कि चलो होया फिर आके फिर चाय बनाते हैं। तो मैं चाय बना रहा था अभी Okay. मैं कहा गल हुई है ना रिपीट हो जाती है वो अक्सर ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਯਾਬ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਲੈਟਿਕ ਖਾਓ ਹਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਡਰ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਹੁਣ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਡੱਬਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਡੱਬਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੂਰੇ 12 ਡਜ਼ਨ ਖਾ ਜਾਂਦਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਾ ਜਾਵਾਂ। ਬਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਵਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣੇ। ਖਾ ਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ना ਮਰਦੇ ਤੇਰੀ ਭਾਈ in the morning no in Okay. the night no। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ। ऑनेस्टली इतना घर च गंद पिया मेरे को कुछ समझ नहीं आता। मेरा दिमाग क्लटर देख के चारों तरफ मेरा दिमाग जैसे बंद हो जाता है। कैन फंक्शन ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ। That's true। ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲਾਈਟਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ आज सारियां जाएंगे कॉस्को पे दोबारा देखेंगे जाके लाइटें। मेरा ख्याल है ये 2 रिटर्न में कर दूंगी क्योंकि हमें कलरफुल वाले की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ सिर्फ येलो और वाइट वाली जो है ना वो ले आऊँ। आई डोंट नो, विल थिंक अबाउट दैट। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਜਸਟ ਫਾਰ ਫਨ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲੋ ਕਦੀ ਬੇਬੀ ਰੰਗੀਨ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਯੈਲੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਲਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ Yeah, you want? ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਵਾਈਟ ਕਰੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਗਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ बच्ची तो ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਗਰ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟੋ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਨ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਓ ਬਸ। ਯਾ ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਥੋੜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਆ ਥੋੜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਯਾਰ क्योंकि सस्तियां थोड़ी है, अच्छी खासी महंगी है। मतलब बगैर लाइट वाली तो मेरे पास $25 दी 2 है ना 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ पुरानी ਉਹ 25-26 ਦੀਆਂ 2 ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ $40 ਦੀਆਂ 2 ਆ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ
ये 17 लाइटां 17 लाइट्स हैं हो ये। जाएगा ना, मैं तेन कहनी है कुछ ते टीवी वाले कमरे चला दांगे, कुछ शैंडलियर जेडे परले पासे लगे डाइनिंग रूम और फॉर्मल जेड़ा लिविंग रूम हाँ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਇਹੀ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਣੀ? ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਤਾਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये है कि वहाँ तो घर ਸਾਰੀ में ਹਰ रह- ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ से जितनी भी जो लोग जा रहे हैं कोई क्वारंटीन पाकिस्तान में नहीं कर रहा, क्वारंटीन तो कोई नहीं कर रहा कोई है। भी नहीं कर रहा। तो आप सोचें कि कितनी गलत बात है। आप अगर पूरी किसी को दुनिया है- के इस कोने से उस कोने तक जा रहे हैं, डिफरेंट एयरपोर्ट से जा रहे हैं, जहाजों में डिफरेंट प्लेन्स में लोग बैठे होते हैं। आप वही अगर आपको नहीं लगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप किसी और को तो दे ही रहे होंगे लाजमी। सो इट्स वेरी सैड। मतलब हुन अब कुछ अब प्लान कुछ कर रही है गवर्नमेंट, मैंने सुना कि भाई देखो क्या करती है। देखें यहाँ पे चार्जेस लगाते हैं, कॉल करते हैं, पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, तो हर कोई फॉलो कर रहा है। तो ऐसी कंट्रियों में भी फॉलो करनी चाहिए जहाँ पे एक्चुअली और ज़्यादा डेंजरस है, जहाँ पे आपको सहूलियात कम है। सहूलियात कम है। आपको जब वैक्सीन आएगी वो पे करनी पड़ेगी, हमें तो फ्री में मिलेगी यहाँ पे कनाडा। और टेस्ट की फैसिलिटीज अभी इतनी नहीं है, तो टेस्ट इतने नहीं हो रहे पाकिस्तान में। हाँ अब भले लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन आप जितने टेस्ट हो रहे हैं उसकी रेशो पे बुनियाद पे वो बता रहे हैं कि इतने इतने परसेंट मरीज। अब ये टेस्ट पूरे टेस्ट हो जैसे यहाँ हो रहे हैं तो पता लगे कि भी सही कि तो आप सोचे कि 6-8 हज़ार 10 हज़ार का कौन टेस्ट कराएगा? गरीब लोग को खाने को नहीं है, वो बेचारा टेस्ट जिसके पास खाने को नहीं वो टेस्ट कहाँ से कराएगा? कहाँ से- So sad। ये तो गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले और मैंडेटोरी इसको करे, हर जगह जाए, टीमें भेजें वहाँ टेस्ट करें तो पता लगे, वरना तो इसके बगैर तो ये अंदाज़ा ही है बस। अच्छा दूसरी बात ये है कि जब मैं वहाँ अपने शहर में जाता हूँ सेफली, चले ठीक है मैंने यहाँ से भी कोविड टेस्ट किया, जहाँ प्लेन में चले गए, उसके बाद जाके वहाँ भी आप ये कर लो कि वहाँ करा लो टेस्ट, दोबारा करा लो। अगर नहीं तो जब अगर मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं जाते ही अपने कम से कम 2 हफ्ते तक अपने घर के अंदर बिल्कुल किसी को ना आने दूँ ना जाने दूँ, बस अपना खाना किसी भी तरीके से कर लिया। जैद का एक्चुअली बहुत सेफ है क्योंकि कोई रहता तो नहीं है कोई नहीं, तो इट्स वेरी सेफ ओवर देयर। तो हम लोग पे जाने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब क्या किया जाए कि डर से नहीं कि मैं ये समझे कि मैं कोई डर से इधर से उधर भाग रहा हूँ या उधर से इधर भाग रहा हूँ, ऐसा नहीं है। प्रिकॉशंस एहतियात आपने करनी है, और वो मैं आने से पहले आप ये सोचें कि मैं मरी के ट्रिप पे गया हुआ था, जैसे That मेरा was very stupid decision। हाँ जब जैसे ही ये प्लान हो गया कि भाई नहीं मैंने जहाँ वापस जाना है, नहीं वो उस वक्त ये सीट का भी था नहीं ना, मैं इसलिए मैंने कहा घूम फिर के वापस उसके बाद सीट फाइनल कर लेंगे। वो मैं अभी ऑन द वे था तो लाइबा ने कहा कि आपकी सीट फाइनल भी कर दी, तो और 2 से 3 हफ्ते के मार्जिन से वो थी, तो उसके लिए ज़रूरी था कि फिर उससे पहले 2 वीक बिफोर के मैंने जब जहाज में बैठा उससे 2 हफ्ते पहले तो आप अपने घर में हो ना, ताकि आप नहीं सेफ चले रहें। आप मरी गए, ठीक है। हाँ नहीं मर तो नहीं गया मैं। यहाँ पे भी जाते हैं मरी में घूमने, बाहर लेक शोर पे चले गए, कहीं पे भी चले जाओ ओपन एरिया में, लेकिन वहां पे आपने देखा कि लोग एक दूसरे से दूर वॉक कर रहे हैं या मास्क पहने में किया हुआ था लोगों क्या ने। वहाँ छोड़ो तो दूरदारी के बाद फिर होते ये थे। गलत डिसीजन था ना कि आप जाएं, जब कोविड है तो फिर ऐसी जगहों पर जाना नहीं चाहिए जहाँ पे बहुत ज्यादा ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜੱਫੀ ਹੋਈ ਫੀਲਡ है तो गंदी डिस्टेंस रखे, तो कोई सब जैसे लाइन में लगे हुए थे। चलो फैमिली के अगर 4-5 मेंबर हैं तो वो अपनी जगह पे, लेकिन हर कोई दूसरा कोई ऐसे हम भी साथ ही खड़े थे, टिकट विकट लेने में सब लाइन में खड़े हुए हैं। उसके अंदर बैठ कैबिन कार है, उसमें 6 या 8 की वो कैपेसिटी है, आपने सारे बिठा दिए। आप इतना नहीं उसमें ये कर रहे हैं कि उसमें चलो सिर्फ 4 करो, एक इसको ने एक उसको ने एक उसको ने, 6 की मेरा ख्याल कैपेसिटी है एक केबल कार के अंदर, आप उसमें वही घुसेड़े जा रहे हैं। तो क्या आप सेफ्टी वहाँ क्या हो रही है? तो फिर ये तो आपको सोचना चाहिए था ना, आप क्यों जा रहे हैं उस केबल मैं बहुत सोचा, मैं बहुत सोच के ना मैं इस करके मैं मुझे मास्क पाई रखे। लाइक इमेजिन कि आपने इतने पढ़े लिखे होके नहीं सोच रहे, तो फिर आप वहां मैनू तू पढ़ा लिखा मंदी कित्थों हो तू? और जो मैं पढ़ा लिखा होंदा तो मेरा तेरे ना ब्याह होंदा, कोई पढ़ी लिखी कोई मतलब आला तालीम याफ्ता कोई हिंदी बीवी जिस नाल मेरा कोई ब्याह होंदा मेरा। ये तो बड़ी ज्यादती जुल्म हो गया मेरे ना, पर मैं निभा रहा बस मां प्यो दा कीता है। जवाब नहीं आया अजे तक,
ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। सो ये बात है कि इंशाल्लाह मेरा जो टारगेट वो बन रहा। अच्छा, इससे ये भी देखें बहुत सारे लोग, अभी एक पिछली वीडियो में मैं थोड़ा सा वो हाइपर भी था, उससे मैं कुछ इस सबको थोड़ी मैं कह रहा हूँ, वही जो बंदे जिनको हालांकि मैं ब्लॉक भी कर चुका हूँ, वो बात हमारी सही थी, मैं ना भी कहता तो, लेकिन लोग बेचारे उनको थोड़ा सा वो समझने की शायद ऐसे इतनी जल्दी से मैंने कभी कोई मैदान नहीं छोड़ा। मैंने, आप मेरी फिर वीडियो देखें, मैंने कहा ऐसा ना हो कि मुझे एक एट द एंड मतलब है कि ऐसा डिसीजन लेना पड़े, ऐसे छोड़ के नहीं मैं भागने लगा। और ठीक है, कभी गुस्से में बंदा बात करता है, लेकिन ये जरूर मुझे पता है कि देखें व्यूज मुझे इससे नहीं, ये बंदों को जहन में पक्का अच्छे तरीके से आंसू आ जाना चाहिए कि आप ये देखें, मुझे ये नज़र आ रहा, मुझे पता, मैं पाकिस्तान में था, मेरे कितने व्यूज़ थे आप लोगों को सबको पता है। एक वीडियो लगी 500-600 हो गए और उसके बाद वो महीने में 1000 पे पहुंच गया, फिर वो 2 महीने में 3000 पे टोटल व्यूज़ एक वीडियो के। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, फैमिली के साथ हूँ, तो मेरी एक वीडियो माशाल्लाह कोई भी शायद ही कोई 2-3 वीडियो हैं जो 20 से नीचे रहेंगी, एक दिन में वो 20 से 30,000 हिट करती है एक दिन में। उसका रीज़न मुझे पता है, मैं किसी गलतफहमी में भी नहीं हूँ, किसी उसमें भी नहीं हूँ। रीज़न मुझे पता है कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, ये हमारा घर का माहौल, घर का सेटअप, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हो रहा। और ये मुझे पता है कि जब मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो जाहिर है, अब ये पूरी दुनिया को पता है, ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं किसी को बना सकता। पैसे तो आते हैं ना यूट्यूब से, कम ज़्यादा जिसको भी, जहाँ जितने भी। लेकिन आप ये देखें कि कोई ऐसा शख्स तो दुनिया में कोई होगा कि उसको पैसे आ रहे हो यूं करके फेंके और कहे मुझे नहीं चाहिए, मैं बस मैंने नहीं लेने ये पैसे। ये यहाँ जो इतने व्यूज़ माशाल्लाह मेरे हो रहे आ रहे हैं, लेकिन मुझे मैं पहले 20वीं दफ़ा कह चुका हूँ आसवा वीडियोज़ में, पाकिस्तान में भी, कि खुदा का शुक्र है ये पैसा मैंने ज़िंदगी में इतना हमने कमाया, इतना उसको गंवाए से मुराद है कि जो फैसिलिटी सहूलियात बच्चों को, ये गाड़ियाँ, वो घर, कौन घर तो हमने पाकिस्तानी अपनी उस ज़माने के दौर में सबसे पहले हम लोग थे जिन्होंने अपना ज़ाती घर लिया, सिर्फ इसलिए कि बच्चों का स्टैंडर्ड अप हो जाए। हम पहले बंदे थे, भले मेरे जितने जान पहचान वाले यहाँ जितने मर्जी लोग देखें, हम पहली फैमिली थी जो पाकिस्तान उस बैच की जो जिन्होंने पहले BMW, हम पहली फैमिली जिसने, जो मिसाल आप लगा लें, हमने खुदा का शुक्र है बड़ी मेहनत की, कमाया भी, और ये नहीं है कि बस उसको कंजूस बन के और उसको रख लिया, उसको खाया भी, उड़ाया भी, दूसरे लफ्ज़ों में। सो पैसा बहुत कमाया, बहुत उड़ाया, गंवाया मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बच्चों को लेके देते हैं, घर का एक आप किराए के घर में या छोटे से घर में रहते हैं और एक खुले घर में रहते हैं, तो आप ये तो नहीं कहो कि ये मैंने पैसा कमाया। ये आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी फीलिंग्स, आप ये जो समझते हो अच्छे घर में, अच्छे माहौल में रह रहे हो, ये सारी चीज़ें, और इसके बड़े फ़ायदे भी फिर हों जो मैं पहले बता चुका हूँ। सो मेरा मकसद सिर्फ कहने का कि ये है कि इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है कि मुझे पैसे की कभी लालच नहीं हुई। वो वजह यह है कि शुक्र अल्लाह ज़िंदगी में बहुत कमा लिया। ठीक है, एक टाइम था जब नहीं थे तो नहीं थे, बस वालिदैन हमारे बेचारे, उन्होंने, वालिद साहब ने बहुत कुछ किया, ये नहीं हम कहते उन्होंने नहीं कुछ किया, जब भी तो आज यहाँ बैठे हम। तो अब मकसद मेरा सारी बात का एंड में ये करना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये क्लियर है कि मैंने पाकिस्तान जाना, तो मेरे व्यू तो अब आने नीचे आने ही आने हैं। मेरी उस वीडियो में जब मैं अकेला हूँगा, अकेला कुकिंग कर रहा हूँ या अकेला मैं कोई चीज़ें बना रहा हूँ, कर रहा हूँ, जो भी है, चाहे व्लॉग है चाहे बाहर बनाऊंगा, तो मुझे 100% मुझे इसका पता, मेरे व्यूज़ ये नहीं रहने। न मैं नहीं समझता आसपा, ये यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, उन्होंने क्या मुझे वहाँ चाचे को अकेले, वो उनका जो देखने का रीज़न ज़्यादा रीज़न बनता है। आप लोग हो, लाइबा, बच्चे सब साथ होते हैं, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा। मेरा सिर्फ पॉइंट कहने का ये है कि मुझे इसके पता होने के बावजूद भी मैं बिल्कुल फोकस्ड हूँ, 100% को मैंने वापस जाना है। बस अब मुझे जो भी कोई जिसने कुछ कहना कह ले, मैं वहाँ अपने जो भी कुछ कर रहा हूँ वहाँ जाके, ये तो अल्लाह को बेहतर पता है, सब कुछ चीज़ें मैं बता चुका हूँ, कोई सारी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने जाना है। मुझे जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी अपनी जगह पे, हालत देखती हो कैसे। अब मैं हर वक्त टीवी इस पे बैठा रोता रहूँ, मुझे ये तकलीफ़, मुझे वो तकलीफ़, और लेकिन चले अल्लाह मालिक का देखेंगे। तो ये प्रोग्राम है इंशाल्लाह जनवरी के एंड में या फरवरी के पहले वीक में, तो इसलिए कि वो बेबी के इंतज़ार में हैं, और अगर वो हो सके तो वो अपना क्या उसको बोलते हैं 5G वगैरह उस एरिया में चलता है ना, बेबी से टेक्स्ट करे, पूछ ले कब आना है कि मैं अपना सीट कब बुक कराऊँ, हैं? पूछना बेबी से।
वो टेक्स्ट करके पूछ लो कि भी मैं मतलब कब की सीट बुक कर रहा हूँ भाई, उस हिसाब से तो उसके दुनिया में आने के 2 हफ्ते के बाद मैं अपनी सीट कर लेता हूँ, लेकिन अगर वो टेक्स्ट रिसीव कर ले तो Yeah. मैं ये चोरी चोरी से ये क्या बन रहा? मैंने अंडे बनाए, इसने सूप भी बना लिया और ये चिकन विंग्स भी बना लिए। सुनी उसामा, आपको सिर्फ 2 काम आते हैं, यकीन करें, एक अंडे बनाना और एक सना को बेवकूफ़ बनाना। क्यों बेवकूफ? वो मुझे पता है, मैं सब समझता हूँ। 2 काम, थोड़े से अंडे बना के उसको बताएगा मैं बड़ी खिदमत कर रहा हूँ, तो भाई अंडा सबसे आसान तरीन काम है, वो करो ना जो वो बना रही है। वो देखो वो बेचारी चिकन बना रही है और वो पता नहीं क्या कर रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम भी मेरी तरह माहिर हो, एक्सपर्ट हो, एक अंडे बनाने में और एक बेगम को बेवकूफ़ बनाने में, बातें बनाने में। इसको आम लफ्जों में कहते हैं बेवकूफ़ बनाना, बातें बनाना मैंने बेवकूफ़ बनाना, और क्या। आपके लिए कोई रोटी नहीं बनाएंगे। चलो वो चिकन, अच्छा ये सुना, ये चिकन बाय द वे है क्या ये जैसे chicken पिछली बार तो wings, आपने बनाया था चिकन विंग्स, हाँ वो लास्ट टाइम रेड चिकन ऐसा कुछ नाम दिया है ना, हाँ वही है ना? चिकन विंग्स के जैसे नहीं नहीं, चिकन विंग्स नहीं होते हाँ हाँ, जैसे फ्राइड चिकन विंग्स, अच्छा अच्छा, ऐसी चीज है। चलो ठीक है। और ये चाय के अंदर ये चाय गलती से बन गई। मेरा कप भी एक डल गया, नहीं डला? या ठीक। वो तो वो चलता है। चलो गुड, शाबाश, हिम्मत करो। वैसे नाश्ता हम लोग तो आपको पता करके बैठे थे, आप फिर जा रहे थे हॉस्पिटल, तो इसलिए आप तो कर चुके नाश्ता, लेकिन चलो हर्ज कोई नहीं, दोबारा थोड़ा थोड़ा खाने में नो प्रॉब्लम। Why are you sad? I'm not sad. मतलब बताओ, सूरत बताओ क्या हुआ, क्या है ये? I'm not sad. Something burning? No. वो तो कुकिंग, उधर उसामा चाय देखना मेरी, नहीं थोड़ा सा तबसरा कर दो। For क्या what? हुआ? Oh, nothing. मेरा फोन नहीं काम कर रहा कल से। जिसको उसका सॉफ्टवेयर उड़ गया कहे, I don't know क्या हुआ है, अभी पता क्या आईफोन में भी ऐसे हो सकता है सॉफ्टवेयर उड़ जाए? I don't know. मेरे साथ तो पहली दफा हुआ। पहली दफा हुई? तो चलो अभी असल में मेरा जो इससे पहले वाला पुराना फोन वो शुरू करो इस्तेमाल, इसको फिर लेके फोन जाएंगे। तो मेरे पास भी दूसरा है, लेकिन लेट्स सी कि इसमें सेव हो जाए सब कुछ। अगर एप्पल वालों से फिर वो अपॉइंटमेंट लेते हैं, या अब वो घूमे जा रहा है, उसका जैसे लोड कोई चीज़ कर रहा है, ये है उसमें सिम्टम्स ये है। मैंने कहा मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूं, ये सूप कंप्लीट हो गया या अभी, ये तो गला वाला तो नहीं है, अभी बनाना है इसको। बेसिकली मुझे नहीं पता सना बना रही ये है, पता चलो नहीं ठीक इसके है। साथ है या नहीं है, लेकिन वो कह रही थी अच्छा, अब ये उसको जो बर्न हुआ तो उसके बाद दोबारा पकाया या थोड़े कंप्लीट बहुत पका हुआ? साथ से डाल दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता टेस्ट वैसा ही होगा, लेकिन नहीं। साने को नहीं बताना। नहीं, मेरा मतलब कहने का अभी ये पक के तैयार हो गया है कि अभी कुछ करना है या इसको? आप ट्राई करना, मैं कर सकता हूँ ना खा के। यार दोनों में से कोई चीज़ तैयार नहीं है, तुम लोगों की सुबह से लगे हुए। कितना खाएगा भाई कुछ ना कोई दाल रोटी तो खानी है ना। मैं वोल्ट आ रहा है इस लाइट के लिए, वो है 110 वोल्ट वाली, तो हम इसका वो फिक्चर, ये मैं इस खोल के वो देख रहा हूँ, उसको सेपरेट करते हैं कि क्योंकि ये लाइटें हम उतार रहे हैं, इसको फर्दर नहीं चलाना, हमने लगाने वो जो डायरेक्ट 110 वोल्ट पे चल रही हैं। तो वो जो बिजली 110 की आ रही है, उसके बाद यहाँ आउट हो रही है कितने की, 12 वोल्ट में आउट हो रही है, तो ये इसको मैं सेपरेट करूंगा, वो बिजली वाली डायरेक्ट तार जब उसमें लगाऊंगा फिर लगेगी, तो वो हमारी सारी वो लाइटें यूज हो जाएंगी। मैं फिलहाल इसको सिर्फ उतार रहा हूँ, इसका मेथड मेरे जहन से अब निकला हुआ कि इस फिक्चर को उतार के फिर मैं उसको, वो एक खुल गई बस, उसके बाद सारा मसला हल हो जाए। इसको देख लो, तू जा, तू भज जा पहले। ये देखो, ये आके इस पे बैठ गए, सिर्फ मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मोबाइल ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आती, ये अब आया था, देखो परफेक्ट आ गए अब तो, अब आदत होगी वहां से आने की। Oh, you're recording that? That's so funny. No, I just got the clue. आदत क्या हो गई। पापा मैं ये देखो निकला ना अभी, निकल गया, ये लाख निकल निकला। गया भाई, इस निकल लाख में कितनी देर से मैं लगा हुआ था, बस तेन सवेर दा रोन डे तू कोल आई है, देख ले कम ठीक हो गए, तेरे तो बगैर वेस्ट करता कोई काम नहीं चलता। I guess. मैं तो उनका कहना भी थोड़ी मुझे हेल्प चाहिए, फिर निकलेगी, जब ये लाग निकलेगा तो ये नीचे आ जाएगा फिक्चर सारा इसका। ਹੁਣ देखो जी आ भी आ जाता देखिए वो दूसरी नहीं, बस वो एक मैथड पता लगे ना, आ देखो ना ਜਿਹੜੀ 110 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, 12 ਵੋਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ 110 ਨੂੰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰੀ 11 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂਗਾ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੀ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਸ ਖਤਮ। ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਸ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਛੱਡਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। हाँ की क्या है ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰ ਕਾ ਔਰ ਧੱਕੇ ਸਟਾਰਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ? हो गई है जी, हो गई है। ਤੇ ओ फिर नस गया जी, कहना इन्हें चले जी 2 लाइटें लटक गई हैं। अब पता देखिए की है? कितने दिन आउट ऑफ पावर रहते ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਟੈਸਟਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਸ ਵਕਤ। ऐदा लगन है ऑक्सीजन लग, ਆਕਸੀਜਨ ਮਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ। मैं तो ला लूंगी। ਯਕੀਨ ਕਰ ਐਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਬਟਨ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖੋਲੂਗਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇਂਗੀ। इदा ही लिखी होएगी तो इदा आ जाएगी। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ टेस्टर है ना। बैठी है बस। यू आर द बॉस नाउ। अच्छा अच्छा हम अभी जा रहे हैं वहाँ, चलो खुद ही बता दो, तुम खुद बता दो कहाँ जा रहे हैं। कॉस्को जा रहे हैं। कल वाला व्लॉग आपने देखा होगा कि हम लाइट लाए थे यहाँ पे लगाने के लिए, तो अब उनको पूरी फिनिश करने के लिए ज़ाहिर और लाइटें भी चाहिए। पहले कॉस्को जाएंगे। देखें अभी टाइम काफ़ी हो गया है कि कुछ खुला हुआ है कि नहीं, इतवार है और आपको पता है लॉकडाउन में टाइमिंग का कुछ पता नहीं क्या है। पहले कॉस्को जाएंगे, उसके बाद जाएंगे होम डिपो। तो ये लाइटें लेंगे, रीसेट लाइट्स, और आल्सो वो इलेक्ट्रिक का कुछ लेना है जैद को। हाँ वो मल्टीमीटर उसको कहते हैं, ये करंट वोल्टेज को देखने का ना, वो काम आने वाली चीज़। अब मेरा जो पिछली मरतबा जो मैं छोड़ के गया तुम लोगों ने पता नहीं कहाँ सामान में फेंका, मिल ही नहीं रहा। उससे मेक श्योर हो जाता है कि आपके कोई करंट आ तो नहीं रहा उसके अंदर, डबल चेक हो जाता है उससे। तो चलो देखते हैं। तो ये हम आए हैं, कल तो 2-3 ही पड़ी थी, लेकिन आज लग रहा है ये हमारी गुंजाइश पूरी हो जाएगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 हमने ले ली, 7 8 कितने चाहिए? 11 सेट ले लीजिए। 11 सेट लेने। और इनकी प्राइस है $39। और उससे पहले जो हमारे 39 के 40 है, हाँ, कोई एक पेनी कम है। प्लस टैक्स होता है यहाँ पे। पहले हमारे घर में ये लगी हुई है जो हमने कितने साल, कुछ साल पहले लगाई थी। 2 साल 2-3 साल तो हो ही गए, 3 साल। चल